go through in the UPSC basically they are asking the terms and some related Buddhist philosophical terms basically. So and some books also they are asking. So in other examinations also they are asking some related to the facts related to the Buddhas, right? So basically we'll talk about the what are the things which are important, and right. So basically everyone knows that he basically born in the Jantriya, that which is Sakya dynasty, right? Sakya dynasty, and mother was what was his mother's name? Trisala, right? Trisla. And when she died, and basically her stepmother basically Prajapati Gautami basically brought up him, right? And his father's name was Sudhodan, and his son name was, that is, Rahul. Okay, and he left his body, left basically home, that around 30 to around, okay, 29 to 29 years of age, and he basically went through the a lot of that lot of that kind of austerity, and there he got enlightenment, right, under the people tree, that is in the basically Bihar only, Bodh Gaya, right, and that is under the Niranda river is there. Okay, so all these facts are there, and so we'll see all these facts which are basically important for the state pieces examination or any other examination which are not to the like the UPSC. But in the UPSC basically they will asking the terms and the meanings, and also the some books associated with it, and they will ask that whether it belongs to the Jainism, Buddhism, or some important concepts which are related to the Buddhism. Okay, so now we'll discuss all these things. Okay, okay. Now coming to this. So basically, this question basically this one is very important. Right? Sometimes it has been asked that what are the causes of the origin of Buddhism. Okay, ये सब आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं बेसिकली। बेसिकली हम मेन में जो चीजें उसको फोकस कर रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओरिजिन, है ना। तो बेसिकली यू ऑलरेडी नो दैट इन द 6th century BC what was happening, that the in the latter Vedic period we already know that the Brahmins were becoming very hostile, and they are becoming the very that they are dominant, and they were basically promoting the sacrifices, and the basically the puja part wala basically things becomes very costly affairs. So in that circumstances, and also they are becoming exploitative, they exploiting the lower classes, right? That is Sudras, and the Vaisya, they were looked down, right? And even the Kshatriyas were, that they were not favored. So basically, in that circumstances, Kshatriya basically challenged the Buddhist, and that basically raised to the that was basically challenge, okay. So basically, okay, Satya reaction against the Brahmanism, right? So basically, this was the case, and पिछली क्लास को उन्होंने कर दिया, okay. Now this was basically the case, okay. Now एक चीज यहाँ पे एक मुझे देखना है कि क्वालिटी बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि इन द ब्राह्मणिज्म क्या होता है, ब्राह्मणिज्म में द बुद्ध ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, but in the Buddhist Pali text basically they have shown that the Kshatriyas are higher than the Brahmins. Okay, this is important, you should remember this one. Now coming to the agriculture economy, basically we know that in the later Vedic period the main economy was what, agriculture, but they are also promoting the sacrifices of animals. So if the animals were killed, so what from where we'll get the oxen, ox basically, तो for that lands को टिल करने के लिए, तो that was basically a kind of the trouble. So basically people started looking for the religion which was promoting the non-violence and non-killing of animals. So basically Buddhism became the one of the appealing religion. Okay, got my point? Hello. तो जो फर्स्ट वाला है उसमें जो क्षत्रिय है उसका डोमिनेंस मतलब बढ़ गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये मेंशन मिला है कि क्षत्रिय आर Yes. ग्रेटर इन द पोजीशन देन ब्राह्मण। नो एक्चुअली हाँ, बुद्धिस्ट बेसिक एक्चुअली क्या होता है कि ये बुद्धा क्या थे, ही वाज आल्सो बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी ओनली, राइट? And Yes, earlier, sir. तो basically he highlighted himself that they are superior basically, है ना? He's not aligned, but the Buddhist Pali text basically highlight the Kshatriya were the more powerful and more basically dominant over the that Brahmins. Okay, earlier Brahmins were dominating, now Kshatriya was challenging to them, है ना? Now we are the ruler, we are the superior, है ना? So that's whole thing. Okay.
Another fact is the patronizing the Buddhism, Jainism, Vaisya, right? तो वैसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? Because इनका था क्या? इनका their main concern was that since they are having the money, है ना? जैसे कि they are having the trade, now you got the money, but you are not treated that at par with the Brahmins, right? So you will definitely feel low, है ना? So in that circumstances, they will feel they will basically go to that religion, which will basically portray them as a good, you know, that good person, right? So that's why basically they went to the uh, they are attracted to the Jainism and Buddhism. Okay, what my point? देखो इनका बेटर ये सोशल स्टेटस नहीं था, सो बेसिकली दे गॉट, है ना, अट्रैक्टेड टू दिस बुद्धिज्म जैनिज्म. ओके, वैसास के यहाँ पे देखो पहले ब्राह्मण आते थे, देन क्षत्रिय, देन वैश्यास, देन शूद्रा. तो दे वर थर्ड नंबर, है ना. दे वर नॉट लुक सिमिलर टू द बुद्धिज्म, दे वर नॉट हैविंग द सेम सोशल स्टेटस व्हिच वर एंजॉयड बाय द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास. दे वर लाइक, है ना, ओके, subservient only, okay, subordinates only. So that why they are attracted. Okay, so this is important. And एक और चीज थी that time basically a lot of violence was there, है ना. So some people looking for the peace, so basically they attracted to the Buddhism. Okay, so that was the reason. Okay, now coming to the, I will talk, and एक चीज और पूछा जाता है आपसे, that what is the difference between the canonical text and the non canonical text. तो basically canonical text क्या होते हैं? Can you tell me the canonical text is one which is basically directly related to the Buddha. Okay, directly related to the Buddha. That is हमारे पास थ्री पितक का जाना, थ्री पितक आर देयर, थ्री पितक. What are those three pitak? Vinay pitak, Sut pitak, and Abhidhamma pitak. Okay, what my point? And another the non-canonical text. Non-canonical text is basically those books, or right, those books which are basically a kind of commentary, right? जैसे कि हमारे पास we have the different, like, है ना, वो क्या नाम था उसका, मिलिंद पिनाहो के द्वारा लिखा हुआ ये बुक था ना, क्या नाम था उसका, नागसेना, मिलिंद पिनाहो, दैट इज नागसेना, है ना. नागसेना और मिलिंद पिनाहो के बीच कन्वर्सेशन था. व्हाट इज दैट बुक नेम? कैन टेल मी दैट बुक नेम? ओके, इसमें दिया होगा, आई कांट रिकॉल दैट नेम. ओके, नैने का मिलिंद पिनाहो ही बुक है बेसिकली. द मिलिंदा मियंडर एंड द नागसेना के बीच में डिस्कशन था, उसको बोलते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. ओके, नाउ दिस टर्म इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. ये नीति प्रकरण क्या होता है? नीति प्रकरण, नीति नीति प्रकरण, प्रकरण बेसिकली इट इज ए बुक ऑफ गाइडेंस विच गिव्स द कनेक्शन बिटवीन द अकाउंट ऑफ बुद्धा's teaching, राइट. तो नीति प्रकरण टर्म इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. ओके, and Visuddhi Marg is basically a kind of book which is written by the Buddha Ghosa. It is also right in the, it is asked in the that is a kind of, है ना, क्या बोलते हैं उसको, for the that match the column, like, है ना. ओके, एंड निदान कथा नहीं पूछा जाता है. ये दीपावंसा महावंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज दैट इट बेसिकली हाईलाइट्स दैट द हाउ द बुद्धिज्म spread to the that Sri Lanka, right. So basically these two texts are there. Okay, and they are written in the Pali. Okay, this is also important. अच्छा, that अच्छा, I talked about that 16 Mahajanpadas name has been mentioned in the uh, in some books, right? Can you name the books where we can find that name, 16 Mahajanpadas? There are some. sir Angutra Sai and देखो तो बड़े बड़े ये यहाँ देखो मैंने हाईलाइट किया था यहाँ पर महावस्तु. Okay, तो महावस्तु was there, and Anguttara Nikaya was there, and one other book also there, that is I have discussed that one, not that, है ना, क्या नाम था, सुति. Okay, I will recall that one. Okay, I have basically discussed that one, and in one of the video I just basically read that one. Okay, sutra. Okay, I will discuss one. Okay, तो basically महावस्तु and अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना, and one another thing also there, that is सुत्त प्रिय कुछ ऐसा करके है. I will come to that, है ना. Okay, okay, three Pitakas we already know, that Sutta Pitak,
विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक। ओके, तो आपको इसमें बेसिकली पूछा जाता है क्या कि व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द सुत पिटक एंड व्हाट इज द कंटेंट विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक। सुत पिटक बेसिकली द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा, राइट, दैट इज हिज basically teachings, right? Okay, जो वचन है तो basically whatever is said ना, that is basically enshrined in the sutta. Sutta means क्या, जो कहा गया है ना, that is whatever is said and convert teaching. And Vinaya is basically a kind of that what kind of life है ना, that nuns and the monks should live है ना, ये सब कुछ के बारे में उनका कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए बेसिकली विनय पिटक इज डिस्कस्ड। एंड अभिधाम पिटक बेसिकली मोरल टीचिंग्स। ओके ओके, दिस वन इज बेसिकली मोनास्टिक और संघ। अच्छा, ये वाला जो टर्म है ना, पति मोखा, व्हाट इज पति मोखा? पति मोखा इज बेसिकली जैसे कि व्हेन द इन द रेनी सीजन देयर पीपल वर बेसिकली यूज्ड टू पति मोखा। ओके, लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट, तो एक और इसमें टर्म होता है पति मोखा है अटोनमेंट ऑफ दिस। ओके, अगर मान लो कि बेसिकली इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस मोनास्टिक ऑर्डर, सो दे यूज्ड टू बेसिकली दैट नहीं होता कि हम लोग अटोनमेंट करते हैं ना, इफ वी डू सम मिस्टेक सो वी हैव टू डू अटोनमेंट है ना, तो दैट वाज द बेसिकली पति मोखा। ओके, if they are not following the disciplic that is monastic order, so they used to basically atone for these mistakes. Okay, that is called patimokkha. Okay, ये पतिमुखा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, हम अभिधाम पिटक वी ऑलरेडी नो दैट इज ओके। सी सर बस मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूज है ना सर, कैनोनिकल टेस्ट तो वो हो गए जो बुद्धा से डायरेक्टली रिलेटेड थे, हाँ वही बोला बट नॉन कैनोनिकल में थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, मुझे क्लियर नहीं था, थोड़ा सा बता दो। ओके, एक कैनोनिकल था, नॉन कैनोनिकल का मतलब जिसमें कि कमेंट्रीज वगैरह, मतलब कि मैंने बुद्धा का वो तो चलो वहां पे लिखा, तीन जो बास्केट वाला, थ्री बास्केट वाला, दे आर एक्सेप्टेड एज द कैनोनिकल टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट लाइक है ना, जैसे कि मिलिंद पिनाह वाला, दैट इज द डिस्कशन बिटवीन मिलिंदा एंड द नागसेना, तो दैट इज काइंड ऑफ डिस्कशन। अब मान लो कि मैंने अपना बुक बुद्धा पे मैंने अपना बुक लिख दिया ना, कमेंट्री लिख दिया, बुद्धिज्म के जो उसका जो है ना राइटिंग्स है, उनका जो टीचिंग्स है उसको मैंने कमेंट्री लिख दिया, so that is non-canonical text which is not directly related to the Buddha. Okay, I have Okay, sir, okay. okay, not directly related. The difference basically they will ask me है ना, that only that one only. Okay, जो कमेंट्रीज वगैरह होंगे बस जहाँ पर दी जाए कमेंट्री है, चलो ये नॉन कैनोनिकल है, और जहाँ पर है कि अभिधाम पिटक विनय पिटक की जो है ना डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द बुद्धा, दैट इज ओके। नाउ ये जो है ना अभिधाम पिटक, ओके, थ्री पिटका निकायस, अच्छा बुक को बोलते हैं निकाय बोलते थे, ठीक है। ओके, थ्री पिटकस, विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधाम पिटक। इसमें आपको याद रखना है ना कि ये देखो सुत पिटक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा निकाय 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 खुदक निकाय ना, तो बेसिकली ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पूछ दे कि देख निका मजमू निका सुमत निका ना, दे आर पार्ट ऑफ विच पिटकाज है ना, तो बेसिकली सुत पिटक। ओके, समझ में आया क्या? ये निकाय जहाँ दिख जाएगा ना, तो बेसिकली शुड मार्क दिस वन एज सुत पिटक। ओके, तो ये पूछा जाएगा तो, और जहां भी आपको यहाँ पर विभंगा है ना, विभंगा विभंगा ये किसका, विनय पिटक का, भी से, ठीक है, और शुद्ध विभंगा, महाविभंगा, भिक्खुनी विभंगा, तो आपको लगा शुद्ध विभंगा किसका होगा, शुद्ध पिटक का, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ विभंगा देखेंगे, विनय पिटक मारेंगे, ठीक है, विभंगा विभंगा, ठीक है। मतलब विभंगा मतलब क्या होता है, दैट इज ट्रांसग्रेसिंग है ना, दैट इज यू आर नॉट फॉलोइंग है ना, विभंग करना है ना, तो भंग करना है ना, तो बुरी तरह से उसको विभंग करना, तो इस तरह से याद करेंगे तो अगर विनय पिटक में आ जाएगा विभंगा विभंगा विभंगा। ओके, अच्छा एक और चीज, ओके, अभिधाम पिटक का नहीं पूछता है, लेकिन अगर इसमें अगर याद करना होगा तो थोड़ा सा देख सकते हैं किसी का, एक वाला पागल पनौती वाला देखना, पुगला पनौती का, डेट इज है ना, पुगला पनौती एंड कथा वतु है ना, ये दो याद रखना है, ठीक है, अभिधाम पिटक में, ठीक है। ये पूछ सकता है, मान लो कि पूछा कि दिस टू बुक्स बिलोंग टू द विच सुता पिटक है ना, दैट इज अभिधाम पिटक। ओके, गॉट, ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं आप लोग कितना देखें। पतिमोखा क्या था,
what is Patimokha? Can you tell the meaning? पर याद नहीं आ रहा। ओके, वो लिखोगे ना पतिमुखा क्या था। पतिमुखा वाज लाइक है ना, जैसे कि इफ व्हाट समवन ट्रांसग्रेसिंग द monastic order, so he is to atone है ना, that is to repent for his mistake, right? So that is called patimokha. Okay, she is there ना, क्या चली गई क्या? वो क्या नाम है उसका? सालिका, are you there? Yes, sir. Okay, चलो एक और जो मैंने पूछा था, what is the difference between canonical and non-canonical text, non-canonical and the canonical text? Canonical mentions Buddha, reference of Buddha, and non-canonical is just commentary, Okay, and it is not directly mentioning Buddha. okay. And what is the So- yes, tell. Canonical is directly linked to Buddha, but non-canonical text is also related to Buddha, but not that directly. Not directly, yes, that is the meaning. Okay, हाँ, okay. और क्या पूछा था मैंने? पतिमुखा क्या मैंने बताया था? Can you tell me the meaning that सालिका? पतिमुखा And not following the monastic order. monarchy. Monastic order. Monastic. Okay. And one thing is that who wrote the Visuddhimagga? Visuddhimagga, who wrote this book? Nagsena. No, that is the Milinda Penahu. That is not Nagsena written. Basically, it is the Milinda Penahu. Basically, Milinda. Linda Penahu. ठीक है. Basically, Milinda is taking the shelter of Nagasena. Nagasena is a Buddhist saint, है ना, Buddhist saint, and he basically took the shelter and asking. जैसे Arjuna was asking questions to the Krishna. Similarly, Milinda was inquiring to the Nagasena about the truth. That is called Milinda Penahu, है ना, Milinda Penahu. Okay. So basically, Visuddhimagga. Can you tell me who had written this one? क्या नाम है? Another person, that is Manu. Okay, Manu. Buddha Ghosh. Buddha Ghosh, yes, Buddha Ghosh. Okay, ठीक है. ओके, एक और चीज हमने पूछा था, महावस्तु जो है, महावस्तु कौन सा, किसका टेस्ट है? बुद्धिज्म का, जैनिज्म का? महावस्तु, it is the Buddhist text, right? Okay. So who is the writer of it? नहीं, राइटर नहीं पूछेगा उसका, बस उसमें पूछा महावस्तु बुद्धा से रिलेटेड है बेसिकली, है ना, राइटर नहीं है उसका कोई. हेयोग्राफी ऑफ बुद्धा, है ना, उनके लाइफ के बारे में, है ना. हेयोग्राफी, अच्छा ये भी पूछा जाता है ना, कभी कभी पूछा जाता है, बेसिकली टर्म पूछा जाता है, हेयोग्राफी क्या होता है ना. बेसिकली दिस टर्म इज गिवन इन द एनसीईआरटी, सो दे मे आस्क, है ना, दैट इज वेरी सिंपल. हेयोग्राफी इज द लाइफ ऑफ द संत, है ना. ओके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायोग्राफी, है ना. सिमिलरली हेयोग्राफी, बायोग्राफी द दैट सम पर्सन, है ना, but hagiography is the graphy of the some sant. Okay, not Buddha only, that can be the any kind of sant, है ना, that can be that Mahavir, that can be any sant. Okay, that is called hagiography. Okay, now already I told you that he basically left his home at 29 years, है ना, basically saw all these things. Okay, उनका जो घोड़ा का नाम था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, घोड़ा का नाम, और बेसिकली हिज चैरिएटर, है ना, ये पूछा जाता है बेसिकली इन द वन डे एग्जाम, दैट हिज चैरिएटर नेम वाज चना जो भी बोलो, एंड हिज हॉर्स नेम वाज कंतक. क्या नाम था? कंतक से आता है ना, क्या नाम था? कंतक, है ना. तो याद रहेगा क्या ये कंतक वाला? कैन यू टेल मी द व्हाट वाज हिज चैरिएटर नेम? चैरिएटर चना. हाँ, कंतक वाज हिज हॉर्स. ओके, and when he was basically going out of his home, है ना, that is called महाविनिष्करण, है ना, that is great renunciation. महाविनिष्करण कैसे आ सकते हैं, मतलब ये महाविनिष्करण मतलब अपने को छोड़ करके बेसिकली गोइंग टू डिपार्ट, है ना, फॉर द अदर वर्ल्ड, है ना, बेसिकली
for search of the truth. Okay, ये महाविनिष्करण याद रखना है। तो महाविनिष्करण पूछता है, और एक और क्या नाम उसका, निर्वाणा या महापरिनिर्वाण। देखो, एक होता है निर्वाणा, एक होता है निवाना, थोड़ा देखते हैं, एक होता है महापरिनिर्वाण। ओके, निर्वाणा। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री टर्म्स? Sacrifice. ओके, सॉरी, Nirvana is sacrifice, right? no, not sacrifice. Nirvana is basically, okay, I will coming to this one. Mahaviniskaran is basically that living his going out of his home. Okay, living his home. Okay, that is called, मतलब his great renunciation है ना, जब मान लो सब घर छोड़ के चले गए, that is called great renunciation, that you are leaving your all the homes and attachment and then you are wandering for the search of the truth, that is called Viniskaran, Mahaviniskaran. Okay, now, and why the Mahaviniskaran, basically he is the son है ना। Nirvana is basically, देखो यहाँ पे है ना, there is two term basically, निबना मीन्स नॉन, क्या होता है, नॉन, यहाँ बना मीन्स अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट या फिर नॉन, मतलब जो भी होता है आपको, मतलब किसी चीज से आपको अटैचमेंट या डिजायर नहीं होना चाहिए, दैट यू आर नॉट अटैच्ड फॉर एनीथिंग, है ना। जैसे आपको यूपीएससी से प्यार है ना, तो यू आर जस्ट अटैच्ड टू दैट यूपीएससी एंड यू विल राइटिंग द यूपीएससी अगेन एंड अगेन, एंड दैट काइंड ऑफ दैट ब्रिंग्स यू सफरिंग। बट इफ यू एंजॉय इट, एंजॉय करना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली ये निवाना इज बेसिकली दैट इज नॉन अटैचमेंट, है ना, दैट इज एक्सटिंग्विशन ऑफ द डिजायर, है ना। जैसे मान लो कि कैसे हम लोग, हाउ कैन वी बिकम द नॉन अटैच टू द एनीथिंग, इफ वी एक्सटिंग्विश आवर डिजायर, है ना, अपने डिजायर को काबू कर लेंगे ना, दैट इफ यू डोंट वांट टू बिकम द आईएएस ऑफिसर, सो दैट बेसिकली वी हैव सप्रेस्ड आवर डिजायर, वी हैव बेसिकली एक्सटिंग्विश, मतलब खत्म करना, नॉट सप्रेस, सप्रेस इज लाइक नैरो वर्ड, बट इफ एक्सटिंग्विशिंग मींस दैट इज totally eliminating the desire of becoming something. So that is basically nirvana. Okay, non-attachment, complete non-attachment, that is completely shutting down your desire, that is called nirvana. Okay, nirvana. And another, I was talking about the महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, that is, इसमें क्या होता है, that death, मतलब he left his body and he has departed to the other world basically. Okay, that is called महापरिनिर्वाण. Okay, got the difference? Yes, sir. Okay, so basically when he departed from his home, so he met his first teacher, है ना, जैसे कि गुरु हम लोग जाते हैं ना, he met the Alar Kalma and then another was the Udak Ramputta. So basically it is always asked, है ना, this what were the guru name, है ना, basically it has been asked basically in the UPSC also, in the PYQ you can see this name, है ना, this name has appeared. Okay, but you can also expect this name. Okay, ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्ट्रेट पीसेस में दोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बेसिकली व्हेन ही वाज मूविंग, है ना, तो बेसिकली ही वाज ऑफर्ड बाय ए गर्ल, है ना, दैट शी बेसिकली ऑफर्ड वाटर एंड बाउल ऑफ मिल्क राइस. ओके, तो सुजाता, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. रिमेंबर दिस वन, बेसिकली व्हेन ही वाज वॉन्डरिंग, है ना, place to place, so basically he got, है ना, that tired and all, है ना, that hungry, so that girl, the girl which who was from the lower caste, and she offered that milk and milk rice. Okay, दूध भात टाइप में बोलते हैं ना. ओके, दिस वन. ओके, बेसिकली ओके, ये हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बेसिकली जब हो गया, खा पी लिया थोड़ा, और कुछ दिन बाद सोचे कि दैट ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू गेट दैट व्हाट that kind of, है ना, हमको तो अभी, मतलब he was wanting 29 years he left, है ना, 29 years में उन्होंने छोड़ दिया, and now 6 years passed, है ना, घूमते घूमते he lost 6 years but he did not get that kind of enlightenment. So basically he sat down under the tree, people tree, and he took a vow, मतलब that is basically took the oath that he will not मतलब यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे कहीं भी, he will until he got the enlightenment, है ना. तो बेसिकली ही वाज वेरी, है ना, दैट टू द रिजॉल्व नॉट टू अंटिल. ओके, तो ये वो अपने कुछ एक ऐसे करके वो प्लेस किया, है ना, बेसिकली, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो बेसिकली दैट टाइम मारा इज द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन. देखिए, जैसे हम लोग कभी व्हेनेवर यू सिट इन द मेडिटेशन ना, जब मॉर्निंग में कभी मेडिटेशन करके देखना,
तो यू विल गेट ओके यार टेस्ट देना है, ओके यूपीएससी में क्रैक करना है, इतना रैंक लाना है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड मरा, ओके, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन। ओके, तो मान लो कि अगर अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट द इल्यूजन दैट आई विल टॉप द एग्जाम, है ना, आई विल टॉप AIR 1 लाना है मुझे, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी लाइट एंड लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, everyone suffer from this, not you only, even me. Okay, so that is called mara. Okay, so basically it was basically tempting his thought. So basically what he did basically, he touched the earth, है ना, and he took that, है ना, that you, if I have done certain thing, है ना, good in my life in the past birth, so you are coming to witness that I am taking the oath that I am getting enlightened, है ना. So at that time basically he took form vow, that is form resolution. So that's like Mara was basically second, है ना, and he started uh, that is flowering him, है ना, उसके ऊपर started flower, है ना, over him. So that was there. So basically this one important, Mara. Okay, Mara is the lord of illusion. Okay, and Nirvana is the enlightenment. Okay, see. सर दिस वाज नो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन एंड सिमिलर मींस बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी में भी। Mara का भी ना, हाँ, Nirvana is the basically enlightenment. Okay, and where he got the land, गया, है ना, बोध गया, and people tree याद रखना है, और रिवर निरंजना रिवर. ओके, निरंजना रिवर. ओके, उसको बोधि ट्री बोलते हैं. एक ये भी पूछा जाता है ना, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है अशोका की जो क्वीन थी तीसरा रखा, उसने जेलसी से पेड़ को काट दिया था, एंड 3 years आफ्टर दिस बिकेम द क्वीन, है ना. ओके, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा. और इसके बाद एक और उसका जो क्या नाम है, आई थिंक इज फ्रॉम द गौर का एक किंग था, ही आल्सो ट्राई टू कट दैट ट्री, है ना. So basically, it is believed that Ashoka's queen, Tisarkrakha, was jealous of the tree, and 3 years after she became the queen, she caused the tree to be killed by the means of Mandu thorns. Okay, तो ये बस इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखना है. तिसरक्खा, है ना, अशोका की क्वीन, है ना. ओके, बेसिकली दिस इज फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, बिकॉज अच्छा 2026 में यू मस्ट राइट सम स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन आल्सो, यू कैन नॉट simply depend on the UPSC very unpredictable, है ना. So but you should prepare for the UPSC, that your preparation should be at par with the UPSC, but you should also write the state PCS examination, because you cannot lose the opportunities, right? I am telling to the Salika also. Okay, Yes, sir. the tree however grew out again. Okay, and okay, Pushmissinga. ओके, ये वाला था. द ट्री वाज अगेन कट बन द पुष्पमुत्संग, है ना. ये वाला भी था, है ना, किंग शशांका, दिस इज आल्सो, एंड ही वाज अ गॉड. गॉड था, एक वेस्ट बंगाल में एक टेरिटरी था, ही वाज द रूलर ऑफ दैट प्लेस. ही आल्सो किल्ड एंड ही आल्सो कट दैट, एंड ही आल्सो. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, द रूलर हैज कट द बोधि ट्री, दैट इज, एक तो क्या नाम था उसका, कसरक्खा, है ना, कसरक्खा. Another is the Pushmusingha, another is the Sasanka. Okay, क्या नाम था इसका, तीसरक्खा. ओके, तीसरक्खा. ओके, याद रहेगा क्या? अच्छा, एक चीज ऐसे मान लो कि आपको याद नहीं रहेगा ना, जैसे मान लो कि मैं बता दूं आपको, जब when the Ashoka basically also conducted third Buddhist council, है ना, third Buddhist council was conducted under the Ashoka patronage of Ashoka. ओके, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ से अशोका ऐसे हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, अशोका और से, है ना. तो दिस टाइम एट दिस टाइम बेसिकली मोगाली टू द तीसरा, दैट इज तीसरा. तीसरा इज द थर्ड, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, है ना, तीसरा मतलब तीसरा बोलते हैं हम लोग हिंदी में. तो तीसरा यहाँ पर थर्ड हो गया, यहाँ पर अशोका, है ना. तो ऐसे आप बता रखेंगे कि यह थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, दैट वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका, एंड under the that sant was, that presiding officer was Mogali Pratitsa. Okay, so this way we can remember, and from here only the Tisa is associated with the what, Tisa, that is also, that is what is known Tisrakka, basically she cut the tree. अब देखो एक्चुअली मैं उसको कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो कि अशोका कैसा था, अशोका बेसिकली अशोका वाज द हस्बैंड, है ना, and Ashoka started moving on the path of Buddha, है ना, started following Buddham Saranam Gacchami, है ना.
तो बेसिकली वाइफ बेसिकली बिकम एनवायर्ड है ना, वाइफ तो एनवायर्ड हो जाएगी ना, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो है ना, तुम साधु बन गए, हम मेरा क्या होगा? तो व्हाट विल हैपन, शी विल बी जेलस है ना, एंड शी विल कट द दैट ट्री। ओके, गॉट, समझ आया क्या? Yes, sir. ओके, तो ऐसे आप लोग जोड़ के याद रख सकते हैं, बेसिकली भूल जाए तो। और एक और याद रखेंगे, शशांका दैट इज गौड़ा किंग एंड द पुष्य सिंह, ही वाज द सुंग डायनेस्टी रूलर। ओके, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंफेसिस किया है। फर्स्ट सरमन बेसिकली व्हेन ही गिव एट द सारनाथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड ये पार्क वाला डियर पार्क भी याद रखना, ठीक है, डियर पार्क। एंड बेसिकली ये जो सरमन था ना, इज कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तना, ठीक है, ये भी आपको पता होगा आई थिंक। ओके, डू यू नो दिस वन, धर्मचक्र प्रवर्तना? Yes, sir. ओके, Arhat, he five disciples soon realized the truth themselves and become the Arhat, है ना। Arhat basically that संत है ना, डिसाइपल टाइप का। ओके, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, फिर भी आप इसको याद रखेंगे, अरहत मीन्स डिसाइपल या संत। ओके ओके, ये परिनिर्वाण क्या होता है? परिनिर्वाण दैट इज आई टोल्ड यू है ना, टोल्ड यू परिनिर्वाण महा, देखो एक होता है परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण भी कॉल्ड है ना द ग्रेट वैकल, ग्रेट ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट डिपार्चर टाइप का। तो ग्रेट महापरिनिर्वाण हम लोग यूज करते हैं बेसिकली उनके लिए, क्या नाम है वो, अंबेडकर के लिए। एंड परिनिर्वाण फॉर द बुद्धा के लिए, ठीक है। ओके, परिनिर्वाण फॉर द बुद्धा दैट इज dying है ना, at the age of 80 basically he died, and while he dying basically one chunda, शायद I think his name was chunda, कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, and he basically fed him what, you know, sukra meat, sukra you know, sukar, that is pig meat। okay, got my point? सर आपने कुछ अंबेडकर से रिलेटेड बताया था कि उनका डेथ को कुछ बोलते हैं, हाँ उनको महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण। हाँ परिनिर्वाण बोलते हैं, दैट इज डेथ ऑफ लॉर्ड, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट द परिनिर्वाण, दैट इज द डेथ ऑफ बुद्धा। ओके, परिनिर्वाण इज द डेथ ऑफ बुद्धा, और महापरिनिर्वाण इज द डेथ ऑफ, उनका भी बोल सकते हैं, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, परिनिर्वाण बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, महापरिनिर्वाण बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जो भी मिल जाए टर्म, इफ इट इज अबाउट द बुद्धा, महापरिनिर्वाण, दैट इज ओके। At the age of 80 basically he left his body। okay, एंड ये जो टर्म, ये जो है ना सेंटेंस, ये याद रखना कि यूपीएससी मुझे लगता है कभी पूछ सकता है। ऑल कंप्लीट थिंग जीके स्ट्राइव डिलिजेंटली, है ना। यूपीएससी को एक बार मैंने देखा था, अशोका का उसने स्टेटमेंट पूछ दिया था बेसिकली रिलीजन वाला, आई थिंक इट इज 2021 के आसपास, है ना, 20 और 19 में पूछा था। तो मे बी दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड, है ना, ऑल कंप्लीट थिंग्स जीके स्ट्राइव डिलिजेंटली, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट बेसिकली वी शुड नॉट अटैच टू आवरसेल्फ एंड टू एनीथिंग, है ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू वैनिश वन डे। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग द सेम थिंग। सो दिस स्टेटमेंट बेसिकली indirectly it is saying that the extinguishing the desire, and that is the term which has been asked in the UPSC, nirvana, that is extinguishing the flame of desire, indirectly extinguishing the flame of desire। तो ये एक्सटिंग द फ्लेम ऑफ डिजायर पूछ देगा कि क्या कहते थे इसको, व्हाट इट वाज कॉल्ड, दैट इज निवाना। या पूछ सकता है इसका मीनिंग क्या था, क्योंकि रिपीटेडली इट हैज बीन पार्ट 2 टाइम्स। तो आई प्रोबेबली एक्सपेक्ट, है ना, इफ इन फ्यूचर इफ इट हैज टू आस्क, तो ही कैन आस्क दिस वन, है ना। जैसे कि you can see in 2023 basically pertaining to the one question came from the Jainism, and it was basically talking about the animate that which of the following religion basically believed in the that life and life exists in the both that living things and non-living things, that is the Jainism. So similarly it can also ask this one, because nirvana is the very favorite term of UPSC, and so maybe probably this can be asked। okay, नाउ कमिंग टू द, ये जो कुछ सिंबल है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेट पीसेस एग्जामिनेशन इफ आर प्रिपेयरिंग। बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेसिकली यू कैन सी दैट व्हेन ही वाज डिपार्चिंग फ्रॉम द होम एंड रेनंसिएशन, दैट इज हॉर्स,
उनके साथ कंटक और जा रहा था, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब उनको ही वॉज बेसिकली गॉट इनलाइटेंड, दैट इज महाबोधि ट्री, है ना, महाबोधि ट्री, बोधि ट्री। धम्मचक्र प्रवर्तन, दैट वाज फर्स्ट sermon, and footprint that called nirvana, okay, nirvana footprint, and lotus और bull, lotus is the like, है ना, birth, and bull is also birth, okay, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथ तो कहना पूछा जाता है। ये एक चीज है यहाँ पर, ये जो फोर आर्या सचानी है ना, ये भी आपको बस इतना जानना है, आर्या सचानी, फोर नवल तो क्या बोलते थे, और ये टर्म जानना है, आर्या सचानी, ओके, देयर आर फोर नवल ट्रुथ, है ना, ओके। ये क्या क्या है, तो ये कभी कभी ना, दैट इट हैज बीन आस्क्ड दैट हाउ अरेंज दिस वन, है ना, दैट पहले देयर इज, सबसे पहले आपको यू शुड एक्सेप्ट दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ सफरिंग, एंड सफरिंग इज कमिंग फ्रॉम द डिजायर, and desire can be extinguished, and the path is the following the eightfold path. So these are the four things you should remember, and the sequence, basically they will be asking the sequence, you know, if you attempt any test also they are asking the sequence only. The truth is that you save the suffering, there is, the world is full of suffering, you are accepting that one, okay. Now there is a cause of suffering, that is our desire is the cause of suffering, है ना. Now, so if you want to control, do you want to control the suffering? Yes. So follow the eightfold path, Ashtanga mark. Okay. So this is the basically the basically they will ask the sequence. Okay. Okay. अष्टांग मार्ग में लास्ट बना है, और यहाँ पर दुख है, ओके, इसका समुदय है ना, देयर इज कॉज ऑफ समुदय, मतलब समुदय, है ना, दैट इज देयर काइंड ऑफ origin of suffering. Is there any मतलब that preventable? Yes. निरोध है, yes. अष्टांग मार्ग, ओके। eightfold path का अष्टांग मार्ग बेसिकली, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, हो सकता है कि पूछता है तो ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो ना, कंसंट्रेशन होगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थॉट, जितना आपको गुड गुड चीज दिखेगा ना वो सब हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला है ना, किधर गया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, okay, do not commit violence, okay. As you know that Buddhism, that the Buddhists basically are eating the animals, you know, that meat, they eat the meat basically. Do you know this one, this fact? No, so Oh, basically they are eating the meat, you know. So basically I have read somewhere that Buddha was against the meat eating, you know, not non-violence, but he did not preach his basically disciple that you should not eat meat. So that is a kind of contrast I have seen, and you can also see that when he basically died, so that time basically his one of the disciple fed him the sugar meat, that is pig ka meat, and pork, and because of that he got that kind of indigestion and he died, you know. So diarrhea, basically got the diarrhea disease and he died. So that was the case with him. So do not commit violence. So basically he was okay, he did not commit the violence, but he was not against the meat eating, okay. Okay, do not cover the poverty of the others, है ना, ये भी नहीं था, okay. Do not indulge in the corrupt practice, है ना, sensual behavior में आपको नहीं लाना है. Do not speak lie, है ना, and do not use intoxicant, okay. To avoid, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा, थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसे। बेसिकली इनका जो है ना, जब व्हेन यू विल आस्क इन द मेंस एग्जामिनेशन दैट व्हाट द कॉज ऑफ डिक्लाइन, तो यहाँ पर ये सब काम आता है ना, दैट बेसिकली दे वर आस्क्ड टू नॉट टू एक्सेप्ट द लग्जरी बेड्स एंड ऑल द थिंग्स, दे वर आस्क्ड नॉट टू इंडल्ज इन इलिसिट सेक्स, है ना, तो ऑल द नॉन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, so all these things basically started practicing because you can see that on the request of one of his disciple, Ananda, basically Ananda Upali, okay. I started Ananda Upali, I don't know, but I can recall, and okay, देखते हैं. Basically one of the Upali, I think. Ananda basically he started in that nuns should be included in the Sangha, है ना. So if the females were started to be included, so basically they kind of certain kind of relationship develop between the nuns and the monks.
So that led to the decline of Buddhism very frequently. Okay, so that is also a reason for the decline of Buddhism. Okay, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट इतना आपको जानना है सब थोड़ा सा, एक बार देख सकते हैं इसको। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सामसती साम समाधि नो, मिडल पाथ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, निमाना ओके, इधर कुछ भी नहीं, सब जितने भी मैंने सब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन ओके, परिनिर्वाण आई डिस्कस्ड है ना ओके। ओके ये चीफ डिफरेंस है ना, ये वाला पूछ सकता है आपसे, बुद्धिस्ट में और नॉन बुद्धिस्ट कंसेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो अटेनेबल ओनली आफ्टर डेथ और इन द गॉड और डिवाइन एसेंस ऑफ लाइफ, बट निबाना में क्या है, इन द लाइफ टाइम इटसेल्फ। जैसे मान लो दैट ए पर्सन, जैसे मान लो कि यू नो दैट्स ओसो हैव यू रेड अबाउट ओसो, ओसो इज बिलीविंग दिस थॉट है ना। जैसे मान लो कि ओसो, या फिर ऐसे भी, जैसे मान लो कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजायर, तो बेसिकली यू आर नॉट अटैच टू एनीथिंग, सो यू बिकम हैप्पी बेसिकली, बिकॉज यू आर नॉट अटैच। अच्छा मिले तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, so he will become very happy, he will become very peaceful है ना, unless you are having attachment, so you will be basically peaceful. So that is possible within the life itself. But if you talk about from the Brahman perspective, so they are asking that you should give charity, you should promote something है ना, that some rituals conduct है ना, so that you can get the क्या इंद्रलोक क्या बोलते हैं उसको, इंद्रलोक मिल सकता है ना, all these things all which are basically possible in the after the death है ना। that is Muslim community also they are asking है ना that हूर मिलेंगे, 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, तो all these things are after the death, but Buddha is saying that you extinguish your desire, you will be having the that please that is pleasure है ना, not that is happiness okay, ultimate happiness. Okay, another thing they are also asking this one okay, basically you can see that Buddha was not basically interested in talking about the souls okay, because okay, but other like Brahmanism and others they are talking about the souls, transmigration of the souls and all these things. Like Jainism also accept that since we are attached to the some karma, that's why we are entangled in the cycle of birth and death. So Buddhism, Jainism also believing, but Buddhism they are not talking about this all these things okay. Reject the God of idea and the soul okay. Buddhism says the transmigration and impermanence. सर सॉरी 1 मिनट, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन और इम्परमानेंस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा ये? देखो हम लोग जैसे कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जा सकते हैं, और इम्परमानेंट दैट इज इट इज टेम्पोररी है ना, दैट वी आर हियर फॉर टेम्पोररी लाइफ, बट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल। एक गॉड और सोल की बात नहीं करते हैं, बस बाकी वो सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द गॉड एंड सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ओके, यू आर, इनका भी बिलीफ यही है कि दैट ट्रांसमाइग्रेशन है कि मान लो कि उनका बुद्धा क्या था, बुद्धा इन द अर्लीस्ट ही हैज शोन इन द जातका स्टोरी दैट इन अर्लीस्ट लाइफ ही वाज born in this है ना, that खरगोश कभी born हो गए, कभी हाथी born हो गए ना, elephant, and in this life he has born as a bodhisattva है ना, बुद्धा। तो transmigration is possible, but he is not interested in talking about the soul। ये बहुत ही फिलोसफिकल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा इलेबोरेट नहीं दिया गया है अभी तक है ना, मैंने भी खोजना ये तो कोशिश गॉड किया। और जो ट्रांसमाइग्रेशन मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, बस भगवान में विश्वास नहीं हाँ रखते बस ये भगवान विश्वास नहीं करते थे, सोल में नहीं करते थे है ना। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल, इनको ये जो बताना चाहिए सोल क्या है, और मतलब कि सोल पर कैसे हम लोग हाउ वी थॉट अबाउट है ना, द सोल इज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम गॉड है ना, वी आर थिंकिंग ना दैट इज द पार्ट ऑफ सुपर सोल इज देयर, दैट इज परमात्मा, एंड वी आर द part and parcel that is atma right, so that kind of thought is there in the brahmanism है ना, but he is not talking about all these things है ना, that he does not believe in the souls, but he believes in the transmigration okay. Yes. Okay. Okay, so what are the okay, हाँ ओके, यहाँ पे देखिए बालिक चुंडा, यह द ब्लैक स्मिथ है ना, यह लास्ट वाला चुंडा था, चुंडा फेड इन द बुद्धा लास्ट मिला ना, and after that it basically died okay,
एंड वन थिंग ऑल्सो देयर, आई थिंक इधर पाली बार्बर था, आनंद अनुरुद्धा क्षत्रिय मॉन्क। ओके, अच्छा एक और चीज था कि दैट in his basically that in his monks basically followers basically all kind of brahman kshatriya vaisya शूद्र सब kind के उनके पास थे ना, it is also important, not it was not fixed to the that kshatriya only है ना, even the brahmans were also part of this. Okay, okay. इसमें he basically not ask that you should not है ना go away from the home है ना, he basically ask है ना you should follow your है ना that, उसमें दो तरह के टीचिंग होते हैं ना that एक लेफ्ट फॉलोअर्स होते हैं ना, एक होते हैं जो मॉन्क बन जाते हैं, तो ऑल दिस टाइप ऑफ पीपल आर एक्सेप्टेड है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज है, थोड़ा मेरे यहाँ आवाज आ रहा है, एक मिनट रुको।